Assalamualaikum students. How are you all? I hope you all are fine and spending a great time with your family at home. I am your English teacher from Metropolitan Foundation School. Students, I hope you all are complete your previous work from month of August and now we start our syllabus from month of September. This is the first assignment of September. In this month, we have a story, 3 languages, Oxford book, Oxford Reading Circle on the page number 65. Story name is 3 languages. 3 languages means 3 ज़बानें. 3 languages means 3 ज़बानें. Now let's start the story. In this story, Count and his son. Story have 2 characters, Count. Count is a man and his son और उसका बेटा. Now read with me. Read the chapter thoroughly. Now let's start. 3 languages. Count lived in a cold mountainous country with his son and his wife. Count जो है वो cold mountainous country में रहता था with his son and his wife. There were many happy people in the country. यहाँ बहुत से खुश लोग थे who smiled as they worked and played. जो काम कर रहे थे और वहाँ रहते थे, खेलते थे. But the Count was not a happy man. लेकिन Count जो है वो एक happy man नहीं था. Others who saw the Count's fine house, जब लोग Count के fine house को देखते थे, they would say, there is a fine house of a fortunate man. ये एक fine house है खुश नसीब आदमी का. But the Count could only see the cracks, the crooked edge and the cost of running the house. लेकिन Count जो है वो कभी खुश नहीं था. वो they only see the cracks. When people saw the Count's young toddling after his father, they admired his sweet face and smiled at his quick pace. जब लोग Count के सन को देखते थे, उसे बहुत पसंद करते थे. Oh, what a bright fellow you are! तुम कितने अच्छे fellow हो. The Count could not see this, लेकिन Count ये सब नहीं देखता था. He said to his wife, the boy is so slow. जो boy है वो बहुत slow है. He complained to the tutor. उन्होंने tutor को complain की. Why is not he learning more? Why does not he know anything? The tutor were afraid to say much in response because the Count was a frightened man. ने tutor को भी complain की, लेकिन tutor भी Count से खौफज़दा था क्योंकि जो Count है वो frightened man था. Over time, the Count became fixed on the idea that his son could learn nothing. He made to him stay in his room with heavy books full of the writing of the greatest philosopher and the mathematician who have ever lived. The Count was irritated when the son only played with the books. जो Count है वो चाहता था कि उसका बेटा एक philosopher बने, mathematician बने, but the son only played with the books. Some years later, कुछ साल बाद, the Count decided to send his son away to learn from a great master in South. उन्होंने उसे South में भेज दिया ताकि वो कुछ एक अच्छे मास्टर से कुछ सीख सके. After a year, एक साल बाद, the son returned, वापस आया. The Count called him to his study and asked him, well, you have learned anything? क्या तुमने कुछ सीखा है? The young man replied, yes, father, I have learned a lot. मैंने बहुत कुछ सीखा है. Well, tell me, said his father, what are the 3 things that you most pleased have learned? मुझे 3 चीज़ों के बारे में बताओ जो तुमने बहुत अच्छे से सीखी हैं. The son smiled and said, first I can understand that what dog says when they bark. पहली चीज़ जो मैंने सीखी है वो ये सीखी है कि जब कुत्ते भौंकते हैं तो वो क्या कहते हैं. At this the Count raised his eyebrow but could not think of anything to say because he was so surprised. कुछ भी कहने के
कुछ भी नहीं कह सका क्योंकि वो सरप्राइज था कि ये क्या कह रहा है, मतलब इसने क्या सीखा है, कुछ अजीब सी बात सीखी है। His son continued, ने जारी रखा, अपनी बात कहना जारी रखा। Second, I know what the birds are saying when they sing. मैंने ये सीखा कि जब परिंदे चहचहाते हैं तो वो क्या कहते हैं। The son closed his eyes to think, और सन जो है वो अपनी आंखें बंद करके सोचने लगा। Did not notice his father's face had twisted into a terrible fawn, और उसने अपने फादर के चेहरे के बदलते हुए रंगों को नहीं देखा कि वो कितना गुस्से में आ रहे हैं। थर्ड, स्माइल द सन, और फिर सन ने स्माइल किया। आई कैन अंडरस्टैंड फ्रॉग्स, और मैं ये भी जानता हूँ, मैं फ्रॉग्स को भी जानता हूँ। ही लुक्ड अप एट हिज फादर्स एंड स्माइल अगेन, और वो फादर को देख के दोबारा स्माइल करने लगा। व्हाट रॉट अकाउंट, उनको बहुत गुस्सा आया। हिज वॉइस वॉज सो लाउड, द पैन्स इन द किचन रेटल्ड, एंड I send you away to a great master. You come back with the head full of nonsense instead of knowledge. Get out, get out. ये सब सुन के फादर को बहुत गुस्सा आ गया और उसने कहा कि मैंने तुम्हें एक अच्छे मास्टर के पास कुछ अच्छा सीखने के लिए भेजा था, लेकिन तुम ये क्या बेवकूफ़ नॉनसेंस चीज़ें सीख कर आए हो, तुम मेरे कमरे से निकल जाओ। The son slowly walked out to the room and closed to the door quietly behind him. Son आहिस्ता से वहाँ से वापस रूम से चला गया। That night the count decided that he wished to never see his son again. डिसाइड किया कि वो आइंदा अपने बेटे को नहीं देखेगा। He ordered his guards, उसने अपने गार्ड्स को ऑर्डर किया, take him off the forest, इसे जंगल ले जाओ, and kill him, और इसे मार दो। Leave immediately, फौरन जाओ, bring me back some evidence, और वापस आओ तो सबूत लेकर आना। That you have done as I command, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा वो सब तुमने किया, उसके सबूत लेकर आना। The guards went to the son's room to get him and were surprised to see him ready to leave. गार्ड जो है वो देख के हैरान हुए कि जब वो गए तो वो सन जो है वो ऑलरेडी रेडी था जाने के लिए। As they walked to the forest, जब वो जंगल से गुजर रहे थे, the son walked to them and told them all about the things they passed. और सन ने उनको सब कुछ बताया। When they came to the clearing deep in the forest, the man looked uncomfortable. जब वो गहरे जंगल में चलते जा रहे थे तो जो मैन है वो अनकंफर्टेबल फील करने लगे। They did not want to kill the charming young man, वो इस चार्मिंग young man को मारना नहीं चाहते थे। Just run away and never return, उन्होंने कहा कि तुम जाओ और कभी वापस मत आना। Said the chief guard ने कहा, I will not have innocent blood on my hand, मैं किसी बेगुनाह का खून बहाना नहीं चाहता। I will not have innocent blood on my hand. The son smiled, thanked them and walked off into the forest. उन्होंने उसका शुक्रिया अदा किया और वो जंगल की तरफ चला गया। The chief guard paid a visit to a butcher on the way back and the count believed that the evidence he was real. क्योंकि चीफ काउंट ने जो है वो चीफ से एविडेंस मांगे थे, तो वापसी में गार्ड ने बुच्चर की शॉप का विजिट किया, वहाँ से कुछ ब्लड वगैरह अपने कपड़ों पे लगा लिया ताकि उन्हें ऐसा लगे कि उन्होंने उनके बेटे को मार दिया है। तो काउंट को लगा द एविडेंस ही सॉ वाज रियल, जो उसने सबूत देखे वो सब सच थे, बट ऐसा कुछ था नहीं। फॉर अ फ्यू ईयर्स द सन ट्रैवल्ड एंड ही हैड मैनी एडवेंचर्स। कुछ साल सन जो है वो ट्रैवल करता रहा और उसने बहुत सारे एडवेंचर्स देखे। वंस एक उसमें से जिक्र किया गया है, अ ह्यूज स्टॉर्म वाज बिगनिंग, एक बहुत बड़ा तूफान आया। ही अराइव्ड इन अ विलेज, वो एक जंगल में था, बट जंगल में सफ़र कर रहा, गांव में सफ़र कर रहा था। गांव में पहुंचा, but there was no here he could stay. He asked at all the house, but many people could not open their doors, and no one had any room. वो जगह तलाश कर रहा था कहीं रहने के लिए, लेकिन कहीं उसे जगह नहीं मिल रही थी। At the last house in the town, a man said kindly to him, Stranger, you need a place to hide from a gale. एक आदमी ने दरवाज़ा खोला और कहा कि अजनबी, तुम्हें इस आंधी से बचने के लिए एक जगह की ज़रूरत है। It is going to be rough night. Find shelter fast. जल्दी से कोई जगह तलाश करो। Do you know of anywhere I can stay tonight? सन ने asked the son. सन ने कहा कि आप कोई ऐसी जगह जानते हैं कि जहाँ मैं आज स्टे कर सकूँ? We have no room. हमारे पास तो कोई रूम नहीं है। There is a tower on a hill. एक टावर है हिल पर, but the wild dogs around it will eat you if they catch you. उन्होंने कहा कि एक हिल पर एक टावर है, वहाँ तुम रह सकते हो, लेकिन वहाँ पर कुछ डॉग्स हैं जो तुम्हें देख लेंगे तो मार देंगे, तुम्हें खा जाएंगे। ट्राई द नेक्स्ट हाउस, किसी और घर में तलाश करो। द मैन शट द डोर, उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। क्विकली टू कीप आउट द विंड एंड द रेन,
बारिश और आंधी से बचने के, हवाओं से बचने के लिए उसने जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लिया। द सन वॉकड अप द हिल टू द टावर, जो सन है वो हिल्स की तरफ चल दिया। द नेक्स्ट मॉर्निंग एज द टाउन्स पीपल वर वर्किंग टुगेदर टू क्लियर अप द डैमेज फ्रॉम द स्टॉर्म, जब गांव के लोग स्टॉर्म से आने वाली तबाही को समेट रहे थे, they wondered that happened to the strangers. Just then the sun walked into the town. Everyone stopped and stared. तो वहाँ से एक जो सन है वो चलता हुआ आ रहा था, सब हैरान हो गए उसको देख के, क्योंकि सब तो ये समझ रहे थे कि जो अजनबी है वो उसको तब तक कुत्तों ने खा लिया होगा। Those dogs are guarding a treasure that is rightfully yours. They told me how to get it. ये सेंटेंसेस सन ने बोले कि ये जो डॉग्स हैं ये सब आपके ख़जाने की हिफाजत कर रहे थे और उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने ये कहाँ से हासिल किए हैं। द विलेजेस क्राउड अराउंड इन अमेजमेंट, वो सब जो है वो क्राउड जो है सारा हैरान हो गया। दे वर अमेज्ड दैट ही वॉज अलाइव, पहले तो उससे ज़िंदा देख के हैरान थे और फिर उस बात पे हैरान थे कि वो क्या कह रहा है। वर अमेज्ड एट व्हाट ही हैड टू से। आफ्टर अ व्हाइल अ टीम ऑफ विलेजर्स लेड बाय द सन एंड अप टुवर्ड्स द टावर। व्हेन दे रिटर्न they were carrying boxes of golds and cheering loudly. और जब वो वापस आए तो उनके हाथों में बहुत सारे गोल्ड के बॉक्सेस थे और बहुत वो खुश थे। The villagers shared the gold with the sun. विलेजर्स ने जो है वो शेयर किया, गोल्ड जो है वो सन के साथ भी शेयर किया और विलेजर्स में भी शेयर किया। And invited him to stay, but he had not finished his journey. और उन्होंने कहा कि तुम अब यहीं रहो, हमारे ही गाँव में रहो, लेकिन अभी सन की जर्नी ख़त्म नहीं हुई थी, वो कुछ और सीखना चाहता था और सफ़र करना चाहता था। सो आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ रेस्ट ही सेट ऑफ अगेन, कुछ दिन आराम के बाद वो वहाँ से चला गया। बाय नाउ द सन वॉज अ मैन, अब जो है वो सन जो है वो एक आदमी बन चुका था, बड़ा हो चुका था। ही वॉन्टेड टू सेटल इन अ प्लेस, वो एक अच्छी जगह पे सेटल होना चाहता था। ही डिसाइडेड टू ट्रेवल टू एन एंशिएंट सिटी रूल्ड बाय अ वॉइस लीडर एंड ट्राई टू फाइंड वर्क देयर। वो एक कदीम शहर को ढूंढ रहा था जाके वो वहाँ पे स्टे कर सके, रह सके और कुछ काम कर सके। और वहाँ कोई ऐसा आदमी था जो बहुत समझदार आदमी उस शहर को लीड कर रहा हो। ही वॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम बाय अ रिवर, वो काफ़ी अरसे जो है वो रिवर में चलता रहा। डैट लेड टू द सिटी, द फ्रॉग्स ऑन द रिवर बैंक्स क्रोक लाउडली एंड हिज सन लिसन टू देम केयरफुली। वो एक रिवर्स के ज़रिए सफ़र कर रहा था, तो उसने फ्रॉग की क्रॉक सुनी कि फ्रॉग्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं। दे वर स्प्रेडिंग द न्यूज़ दैट द वॉइस लीडर ऑफ द एंशिएंट सिटी हैड डाइड एंड देयर वाज नो वन टू रिप्लेस हिम। वो ये सुन रहा था कि फ्रॉग कह रहे थे कि जो एंशिएंट सिटी के लीडर है वो मर चुका है और उसकी जगह लेने के लिए कोई नहीं है। द फ्रॉग सन ग्रू लाउडर एंड लाउडर, जो फ्रॉग का सॉन्ग है वो लाउडर और लाउडर होता जा रहा था। एज द सन ड्रू क्लोजर टू द सिटी, जैसे ही सन जो है वो क्लोजर सिटी के करीब आ रहा था, शहर के करीब आ रहा था, फ्रॉग्स का जो सॉन्ग है वो लाउड होता जा रहा था। दे वर सिंगिंग दैट द न्यू लीडर वॉज कमिंग, वो गा रहे थे कि नया लीडर आ रहा है। एट द सन एज द सन अप्रोच द सिटी ही कुड सी अ ह्यूज क्राउड, जब वो शहर में पहुंचा तो उसने एक बहुत बड़ा क्राउड देखा। वेटिंग बाय द गेट, जो गेट पे इंतजार कर रहे थे। एंड ऑन द सिटी वॉल्स, शहर की दीवार के पास। एट द एंट्रेंस टू द ग्रेट सिटी, इस ग्रेट सिटी की एंट्रेंस पे टू डव्स फ्लू डाउन एंड विस्पर्ड इनटू द सन ईयर्स, और दो पाख्ताएं नीचे की तरफ उड़कर आईं और उसके कान में सरगोशी की। यू शैल बी अ फादर ऑफ दिस पीपल एंड देयर लैंड्स, तुम इस शहर के लीडर मतलब फादर बनोगे और इस ज़मीन के। द सन वॉज नॉट श्योर, वो यकीन नहीं कर रहा था डेट इट कुड डू दिस, कि वो क्या करे। बट ही वॉकड इन थ्रू द सिटी गेट। एज ही स्टेप थ्रू द गेट द फ्रॉग स्टॉप टॉकिंग, जब वो शहर के गेट के बिल्कुल पास पहुंच गया, गेट में दाखिल हुआ तो सारे तरफ खामोशी छा गई। द क्राउड स्टॉप टॉकिंग एंड देयर वाज साइलेंस, और सारा क्राउड जो है वो खामोश हो गया। जो फ्रॉग शोर मचा रहे थे वो सब खामोश हो गए। Talking, silence was there. Slowly, a whisper began to run through the crowd. एक हल्की सी आवाज़ आई क्राउड से, It's him, ये है, He is the one, ये है वो आदमी। This must be the sign, ये एक साइन है। He must be the one, ये सिग्नल हमें दे रहा है कि यही है वो शख्स जो अब हमें लीड करेगा। Slowly, a whisper began to run through the
place official step forward and said, "The signs are clear. You are our next leader." ने कहा कि यही एक सिग्नल मिल गया है हम सबको कि तुम ही हमारे लीडर हो. Come forward and claim your title by saying our scared words. का आओ और कुछ अल्फाज ये अपना टाइटल ले लो और कुछ अल्फाज कहो. द सन स्माइल्ड एंड क्राउड चीयर्ड. सन जो है वो स्माइल करने लगा और सारा क्राउड जैसे चीयर कर रहा था. द टू डव्स विस्पर्ड द वर्ड्स इन द ईयर्स एंड द सन स्पोक देम क्लियरली. जो दो परिंदे हैं उसके कान में बोल रहे थे और जो सन है वो क्लियरली बोल रहा था. फ्रॉम दैट वन ऑफ द सन वॉज अ वॉइस लीडर to all his people and their lands. तो उस दिन जो सन है वो उस शहर का लीडर बन गया. सो स्टूडेंट्स, काउंट ने अपने बेटे को साउथ में सीखने के लिए भेजा. तो जो कुछ उसने सीखा था वो उसके इस तरह काम आया कि वो एक दिन एक लीडर बन गया. लेकिन काउंट को ऐसा लगता था कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता. बट ही वॉज अ लीडर ऑफ दिस सिटी. So, now let's start our copy work. We have dictation words, word sentences and words meaning. First of all, you make a title page, month of September. आपने month of September का title page बनाना है. That very tidy title page, very colorful title page. Then start dictation words. First word is cold. Cold means ठंडा. Country. Second word is country. Country means milk. Twist means uljana. Fourth word is garden. Garden means spa. Fifth word is command. Command means hukam dena. Sixth word is charming. Charming means dil fareb. Seventh word is adventurous. Adventurous means daler. Eighth word is treasure. Treasure means khazana. Ninth word is villagers. Villagers mean dehati. Last word is spread. Spread means phailana. Okay, these are dictation words. Write in your copy in a very neat. Now word sentences. First word is gate. Gate means darwaza. And the sentence is, our school gate is so huge. Sentence is, our school gate is so huge. हमारे स्कूल का गेट बहुत बड़ा है. Forest. Forest means जंगल. Sentence is, I like to visit forest. I like to visit forest. मुझे जंगल का विजिट करना पसंद है. Count. Third word is count. I count the coins up to 100. I count the coins up to 100. मैंने 100 से ज़्यादा coins count किए. Fourth word is quietly. Fourth word is quietly. And the sentence is, close the door quietly. Close the door quietly. दरवाज़ा आहिस्ता से बंद करो. Frightened. My sister frightened from the strangers. Frightened. Frightened means खौफज़दा होना. My sister frightened from the strangers. मेरी बहन जो है वो अजनबियों से खौफज़दा हो जाती है. Okay, now come to the next slide. Words meaning. You should write in your copy in a very neat and clean writing. First word is fortunate. Fortunate means lucky. Second one is crooked. Crooked means bent, not straight. Third word is toddling. Toddling means is usually a child walking unsteadily. Fourth word is evidence. Evidence means proof to confirm something. Proof to confirm something. Fifth word is irritated. Fifth word is irritated. Irritated means bothered, annoyed. Bothered, annoyed. Okay, students, this is your copy work. First of all, you make a title page of month of September. Then you write down
the dictation words, then word sentences and words meaning in a very neat and clean writing. If you have any problem regarding to this video, you can contact me on WhatsApp. Thank you. Allah Hafiz. Stay home, stay blessed.